Join me, RJ Shahabuddin, every Wednesday between 5 and 6 p.m., where I'll have consultant, physician, and health expert Hakeem Mudassir Fahim Saab all the way from Karachi, Pakistan, to educate and empower us on how to take back control of our health. Hakeem Saab will be reintroducing Tibbe Yunani and its holistic approach towards complete and overall health. So join us every Wednesday from 5 p.m. to learn about herbal medicine, seasonal health tips, nutrition and diet, managing stress, women's health, detoxification, and much more. हिकमत की बातें हकीम मुदस्सिर फहीम के संग हर बुध 5 से 6 फीवर एफएम पर। खुशामदीद, welcome back. This is Fever FM on 103.3. मैं हूँ RJ Shahabuddin and we are on the Wednesday drive time and we have approached our wonderful second segment of the show which we have been advertising. You must have heard the advert as well. So every Wednesday between 5 and 6 o'clock we have Hakeem Mudassir Fahim Saab all the way from Karachi in Pakistan. So हमने सोचा कि एक गाना आप सबके लिए लगा दें रहीम शाह की आवाज में while we just set everything up technically just to make sure that all the sounds are good and that we can see each other. So we do have Hakeem Mudassir Fahim Saab live all the way from Karachi in Pakistan. He's on air waiting to go on. But I just want to give a quick introduction. अगर आप पिछले हफ्ते का जो शो था उसको सुने या देखें तो I made Hakeem Saab wait for about 8 minutes. 8 मिनट में देख रहा था मैं. I was going on and on. इतनी लंबी इंट्रोडक्शन करा दी लेकिन वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी जो आज इंट्रोडक्शन करेंगे और जो सब्सिक्वेंट शोज हैं उनकी इंट्रोडक्शन बिल्कुल ब्रीफ होगी. तो मैं आपकी तवज्जो उस पहले शो तक राग़िब करूंगा कि अगर आप डिटेल इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो आप पहले शो पे जाएं और पहले जो 8-9 मिनट हैं वो सुन लें because it was a very lengthy introduction. So this is Tibbe Yunani. This is what the show is called. So before anything I just want to say assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. शाहब भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. अपनी सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का करम. जबरदस्त. तो अब मुबारक हो. दिस इज द सेकंड एपिसोड एंड इज गोइंग स्ट्रांग. पता नहीं मैं थोड़ा सा नर्वस रहता हूँ कि अगले वेडनेसडे हकीम साहब आएंगे, मेरी तैयारी सही तरह से हो रही है, मेरे पास एडुकेट इंफॉर्मेशन है कि नहीं. हमारा राब्ता तो रहता है लेकिन यू नो आई एम ऑलवेज एंटिसिपेटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड एंड अ लिटिल बिट नर्वस एज वेल क्योंकि बातें जो इतनी अहम है और एक आप इतने दूर से कॉल कर रहे हैं, आप अपनी भी तैयारी करते होंगे तो इट्स यू नो इट्स अ बिग थिंग. आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ये आपका इस तरह का रोल जो है ना हमारे सुनने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप भी इतने अवेयर नहीं होंगे, उतने ही अवेयर हैं जितने हमारे बाकी सुनने वाले अवेयर हैं. उसमें मुझे इतना आसानी लग रही है, मुझे ये लग रहा है मैं जितने सुनने वाले हैं ना आपकी शक्ल में समो कर मैं उनसे बात कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. और इस वक्त ये तो है कि हजारों लोग सुन रहे हैं लाइव, लेकिन हम ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी हमारे वेबसाइट पे है on radioagentfever.co.uk. If you missed, you can go and listen back, and of course we're going to be uploading you know these online as well, so you can check out these interviews if you need to go back. क्योंकि ऐसे होता है कि एक इंटरव्यू में या जब एक बार सुनते हैं तो कुछ कुछ बातें जहन में रहती हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डॉक्यूमेंट हो जाए तो फिर अगर आप वापस आना चाहें तो वो फैसिलिटी हमारे सुनने वालों के लिए रहे और हमारे जो बातें वो भी डॉक्यूमेंट हो जाएं. So I'm just going to do a brief introduction for new listeners. हर हफ्ते नए सुनने वाले तो होंगे. So I think it's appropriate to do that. So we have Hakeem Mudassir Fahim Saab, who's a researcher, physician and teacher. He's a prominent figure in complementary and alternative medicine, which CAM is for short. He's a confident and a profound figure in the field of complementary and alternative medicine. Mr. Mudassir Fahim is globally recognized as a distinguished herbal physician known for his exceptional medical services and carries an enduring legacy in the realm of complementary and alternative medicine, yani कि CAM. His legacy is founded on academic excellence, a commitment to holistic well-being, and a passion for equal health opportunities in neglected communities particularly. He holds a significant place in medical research circles worldwide, encompassing areas such as Eastern medicine, the Greek methods of alternative medicine, and that is what is Tibbe Yunani, and that is what we're talking about. But it also includes elements like cupping, yani कि hijama, which most of our listeners will be aware of,
color therapy, which is, I feel, a new introduction, but it's an age-old tradition, reflexology, and meditation. These practices offer solutions to personal life challenges, domestic turmoil, psychological issues, spiritual tranquility, and physical ailments, benefiting people all across the globe. Today's topic is going to be on herbal medicine and its role in Tib. We're going to be exploring the rich tradition of herbal medicine in Tib, highlighting specific herbs and their medicinal properties. लेकिन उससे पहले, we had a few unanswered questions from last week, and I think for new listeners, if we can just give a brief overview कि जो तिब है इसके बुनियादी असूल क्या है और मॉडर्न मेडिकल पर प्रैक्टिसेस में और तिब के असूलों में क्या फ़र्क है, अगर ये आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे दोबारा दे दें और देखिए, फिर चलते हैं। अगर तिब के बारे में मैं जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि तिब एक ऐसा तरीका इलाज है जो आपके पूरे लाइफस्टाइल को डिस्कस करता है। तो आपके पूरे लाइफस्टाइल में से कुछ चीजों को या एक चीज को या तमाम चीजों को तब्दील करके उसका इम्पैक्ट आपकी उस डिजीज और आपकी लाइफ पे डालने की कोशिश करेगा। उसकी बहुत सारी मैं मिसालें दे चुका कि अगर आपको कुछ मसाइल गर्मी की वजह से हो रहे हैं, गर्म मौसम की वजह से हो रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं आपके गिर्द आपको ये मशवरा, जहाँ बाकी दवाइयाँ दूंगा या बाकी मशवरे दूंगा, तो एक मशवरा ये भी दूंगा, भाई अपने गिर्द आप एसी लगवा लें। ठीक है, इसका इलाज का हिस्सा है। अगर मुझे लगेगा कि उस गर्मी की वजह से आपके जिस्म में थोड़ी सी पानी की कमी हो रही है, तो मैं आपको शायद ये मशवरा भी दूंगा कि साथ में पानी का इजाफा ज्यादा करें। और हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा मुझे ड्रग्स पे ना जाना पड़े, क्रूड ड्रग्स पे खास तौर पे। और जब क्रूड ड्रग्स पे मैं जाऊंगा तो उसका सोर्स जो है ना वो नेचुरल होगा। ठीक है, टाइम टेस्टेड एंड ह्यूमन टेस्टेड, ये जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तिब्बत की मेडिसिन इस्तेमाल करने का, वो क्या है? टाइम टेस्टेड एंड ह्यूमन टेस्टेड। सदियों से, हजारों साल से ये तिब्बत इस्तेमाल हो रही है और उसकी दवाइयां इस्तेमाल हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो उसके जीरो स्टडीज हुई, फिर वो एनिमल स्टडीज हुई होंगी, फिर उसके बाद आगे आपको पता है कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ वो हुए। उसके बाद आप कोई भी दवा जो है उसके बाद वो इंसानों को इस्तेमाल करवाने की काबिल होती है। तो इंसानों को दवाएं ये इस्तेमाल करते हुए हजारों साल हो गए। तो मॉडर्न साइंस में उसमें क्या फर्क हुआ कि मॉडर्न साइंस अमूमन लैब टेस्टेड, टाइम में वो शॉर्ट टाइम टेस्टेड एंड आर्टिफिशियल केमिकल की बुनियाद पर होती है। हमारे यहाँ नेचुरल है, तो वहाँ पे उनका जो सोर्स है, उसकी जो शक्ल है, शक्ल मेडिसिन की, वो अमूमन केमिकली प्रोड्यूस कुछ मेडिसिन हैं, तो वो उसको इंड्यूस करके उससे कुछ रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। उसकी छोटी मुझे मिसाल दे लेने दें, राइट टाइम पे, चूंकि आपने क्वेश्चन किया कि जरासीम की थ्योरी के बारे में अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि अमूमन पुरानी थिप वो अनअवेयर है या वो डिस्कस नहीं करती। हालांकि बू अली सीना के जमाने में भी कोरोना टाइप के इन्फ्लुएंजा के कुछ मसाइल आए थे, तो उन्होंने उस जमाने में भी वायरसेस को और जरासीम को डील करने के तरीके बताए हुए हैं ऑलरेडी। तो अब उसके तरीका क्या होगा, अगर मौजूदा दौर में अगर आप मॉडर्न साइंस के साथ किसी चीज को इलाज करवाना चाहते हैं, किसी जरासीम को, यार बैक्टीरिया एक पेट में चला गया, उसके बाद वो कुछ चीजें कैफियत कॉज कर रहा है, डायरिया वगैरह, तो अमूमन उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर एक केमिकल उतारा जाता है जो उसकी बैक्टीरिया के जो सेल वॉल उसको इंजर करेगा, उसको इंजरी देके उसको मारने की कोशिश करेगा। तो हम ये कहेंगे कि वो एक ऐसा जहर है, वो दवा जो उस बैक्टीरिया की मारने की नीयत से आपकी बॉडी में इंसर्ट किया गया, लेकिन यार वो अगर उसकी मिकदार थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो आपके लिए भी हार्मफुल है। तिब में ये कहा जाता है कि हर जानदार चीज एक इन्वायरमेंट में जिंदा रहती है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो जर्राफा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो इतना सा जरसूमा है। हम ये कहेंगे कि ये देखा जाए कि उसका ड्यू रिक्वायर्ड जो
एनवायरमेंट है वो क्या है? कुछ आपको पता जरासीम है, वो एक टेम्परेचर है, फर्ज करें 52 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जिंदा रहते हैं बॉडी के। कुछ जो है उस पे कम पे जिंदा रहते हैं। तो तिब को जब जरासीम की तरफ आ, बीमारी को काबू करने की कोशिश करनी होगी, तो वो उसमें बहुत कम ऐसा होगा कि वो ऐसे बम मारे अद्वियात के जिससे वो जरासीम मरे। वो क्या करेगा, उसके एनवायरनमेंट में उसके लिए, उस जरासीम के लिए जो माहौल है वो नासाजगार कर देगा, जिसमें वो जिंदा ही नहीं रह सकेगा। जब वो जिंदा नहीं रह सकेगा तो वो मरेगा। ठीक है। तो तिब की और उसमें ये एक बुनियादी फर्क आ गया कि सब कुछ वही तिब करती है, तो उसके अंदर उसकी कोशिश, अच्छे तबीब की एक पहचान ये है, उसकी कोशिश जो होती है आपको ड्रग पे ना जाना पड़े। अच्छा, उसके बाद ये हमारे जो ड्रग्स है, जिसको मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन का मतलब होता है टिप या तरीका इलाज। ड्रग होता है उसका वो टूल जो आप खिला के जिससे हम ठीक करते हैं। तो हमारे यहाँ ड्रग के जो दर्जे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एलोपैथिक में किसी और टाइप के दर्जात इस्तेमाल होते हैं, आप जानते हैं। फार्माकोलॉजिकल उसके इफेक्ट्स के हवाले से, केमिकली जो उसके इफेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रख के उसके असरात प्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी में, और जो कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे इंसान मजबूर होता है कि वो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, अब वो क्या करे। तो उसको बैक स्टेप पे जाना है और दूसरी, जिसको कहते हैं ना, साइड रोड को यूज करना है, सेहत के साइड रोड को, जो कि मेन शाहराह है असल में। तो अब वो क्या करेगा कि एक तबीब क्या करेगा, अब वो वहां पे बम नहीं गिराएगा। वो बस मैंने आपको जैसे अर्ज की कि वो आपको उस इन्वायरमेंट में तब्दीली करके आपको उस मसाइल से निकालने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह। ये बुनियादी फर्क है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो घंटों बोल सकते हैं इस पे तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत जबरदस्त मिसाल थी। और मेरी आवाज आई थिंक वापस एको हो रही है। नहीं, अब ठीक हो गया। Just in English, we asked them, what are the foundational differences between tib and modern medicine? And Hakim Saab explained that, for example, if you take a virus or bacteria, and what the modern medicine does, it goes to attack the wall of the virus, it punches it, injures it, so the virus and the bacteria die. But the difference, and it works really well. But with tib, it looks at the environment in which that virus and that bacteria is living in and under. So tib changes that environment in a very holistic way, so bacteria and viruses don't survive. So this is one of the foundational differences, just as one example amongst many. हकीम साहब, पिछले हफ्ते भी 4 टेम्परीमेंट्स जो तिब में 4 मिजाज हैं, वो बात मिस हो गई थी। तो अगर आप तिब की मिजाज, द 4 टेम्परीमेंट्स इन तिब, आपके पास तकरीबन 5 मिनट है, अगर उससे भी कम कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मजाज के हवाले से, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी देखें, मजाज को अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक जमाना आ गया कि मजाज इस टाइम पे सिर्फ तो आपको पता, साइकोलॉजिस्ट उसको यूज कर रहे हैं। कदीम जमाने से हिपोक्रेट ने एक 4 दर्जे मुतय्यन किए मजाज, जिसका नाम रखा। और वो आपको क्या था, सेंगुइन, ठीक है, बाइलस, एक्स्ट्रा बाइलस, एंड इस तरीके से 4-5 और फिर 8 आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। वो भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन मजाज किस चीज का नाम है ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बॉडी के अंदर अखलात है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमर्स। हम लोग अखलात कहते हैं, तिब में उसका तिब्बी नाम है अखलात, खिल्त, खिल्त की जमा अखलात। और उसको जो मॉडर्न नेम है उसका है वो ह्यूमरस, या ह्यूमर्स भी कहते हैं। ह्यूमर्स का मतलब लतीफा बन जाता है, तो उसको बोलते हैं इस तरीके से एक्शन में, वो ह्यूमर्स कहलाता है। तो ह्यूमर्स क्या है कि लिक्विड्स, बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स हैं उसको डिस्कस करता है मजाज। जब वो लिक्विड्स आपस में ब्लड के जहां पे जो जगह है वो है हार्ट, जब ये 4 चीजें उस जगह पे डिपॉजिट होती हैं तो उनका रेशियो हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ होता है। वो 4 लिक्विड जो है, ठीक है, एक लिक्विड है उसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है, एक के अंदर जो है वो मैंने पहले भी मिसाल दी थी, उसके अंदर मिनरल ज्यादा है, एक में विटामिन ज्यादा है, एक में कुछ और चीजें ज्यादा है। तो ये 4 किस्म के फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स। तो वो जब एक जगह होते हैं, वो जगह है हार्ट। वो चीज जो आपस में मिलके बनती है उसको कहते हैं ब्लड, ठीक है। तो वो होता है पंप,
बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके मुख्तलिफ जगहों पे वो फ्लूइड जाके अपने असरात रखेगा, वो न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहे हैं अपने अपने। अब वो मिल चुका है, मैंने गोश्त ज्यादा खाया, मैंने नमक ज्यादा खाया, मैंने पानी ज्यादा पिया, तो मेरे ब्लड के अंदर पानी की मिकदार भी ज्यादा है, नमक की मिकदार भी ज्यादा है, प्रोटीन की मिकदार भी ज्यादा है, और मैं वो एसिड के बगैर उस ब्लड को लेके जा रहा हूँ। तो जहां जहां ऐसे ब्लड की जरूरत होगी तो वहां वो डिपॉजिट होगा, अपने न्यूट्रिएंट्स गिराएगा, उस मुतलका ऑर्गन टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल तक उसको डिपॉजिट करेगा और उसको नरिश करेगा, उस जगह को, उस चीज को, उस ऑर्गन को, और वो डेवलप होगा या जिंदा रहेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जब इस, ये आपके समझ में आ रहा है, इजी है ना। उसके उस मजा उस उन चार जो फ्लूइड्स हैं उनके, उनका अपना टेम्परामेंट है, उनकी अपनी कैफियत है। हम ये कहते हैं कि जैसे सोदावी है, उसको एट्राबेलियस कहते हैं। सोदावी का मजाज का आदमी खुश्क होगा। हमारे यहाँ दूसरा है दम्भी मजाज कहलाता है, उसको हम सेंगुइनियस कहते हैं, वो उसका मजाज गर्म कहलाएगा। एक मजाज है हमारे यहाँ फाइलम कहलाता है, बलगमी कहलाता है, उसको अमूमन तर्क माना जाता है। तो इसका मतलब ब्लड में जब जब तरी आएगी तो उसकी मिकदार, इसका मतलब है उससे मुराद जो है बलगम है। इसी तरीके से जब उसके अंदर सॉल्ट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो हम कहते हैं कि ये सफरा बढ़ रहा है, बाइल कहते हैं इसको, है ना। तो ये चार चीजों का, इस इस थ्योरी के मुताबिक चार टाइप की चीजों का मरकब है। पहले वो उसके नाम ये रख दिए गए, और अब जो मॉडर्न साइंस और आगे जा रही है, बाइल में देखती है कि उसमें मुख्तलिफ अल्कलाइड्स हैं, मुख्तलिफ सॉल्ट्स हैं, है ना। तो वो और डिटेल में जा रही है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चली गई है। तो जबकि तिब ने जो मोटा मोटा बयान किया वो वही है जो अभी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। तो ये चीजें जब अंदर जाती हैं तो हर चीज के अंदर ये चीजें मुख्तलिफ हैं, ये लेवल्स मुख्तलिफ हैं, पानी का, खुश्की का, तरी का, गर्मी का, सर्दी का। ठीक है, ये लेवल चूंकि मुख्तलिफ है तो उसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर भी फर्क पड़ता है, कि पर्सनैलिटी टाइप कुछ और हो जाती है। इससे इस पर्सनैलिटी टाइप और इन्वायरमेंट बन जाता है अंदर का। ठीक है, जैसे मैंने अर्ज कर रहा था ना, मखसूस जरासीम फर्ज करें गर्म इन्वायरमेंट में रहने के आदी है, बाहर भी गर्म है, ब्लड में भी गर्म इन्वायरमेंट हो गया, मतलब सॉल्ट और ऐसा इन्वायरमेंट आइडियल किस्म का बना, तो वो अंदर वो मखसूस किस्म के जरासीम उसमें जिंदा है। तो मैं अगर जब इलाज करना चाहूंगा तो मैं आपको उस गर्म एनवायरनमेंट से निकालने के लिए दो काम करूंगा। वो चीजें जो आपके अंदर गर्म एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं उसको हम रोक दें, और उसको ठीक करने के लिए आपके अंदर वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि उस गर्माइश के असरात को लेके बाहर निकला जा सके। तो इस तरीके से जो अखलात और मजाज और टेम्परामेंट जिसको कहा जाता है, उसके बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, कि अगर वो आउट हो गया है आपकी तबीयत के मुताबिक, आपकी बॉडी के मुताबिक, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, नेचुरल उस पर लाने की कोशिश करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बच्चे का नेचुरल एंड उसका जो जो तबई मजाज है वो कहलाएगा बलगमी। ठीक है, फाइलम, मतलब उसके अंदर तरी ज्यादा होगी, ऐसा बच्चे के अंदर तरी ज्यादा होगी। ठीक है, जिस मजाज में तरी होगी तो डेवलपमेंट होती है। अच्छा, नौजवान के अंदर होगा खुश्क मजाज, गर्म मजाज, गर्म मजाज। ठीक है, जब वो और आगे बढ़ेगा वो आपका खुश्की की तरफ चल पड़ेगा, फिर और आगे जाएगा वो तरी की तरफ चल पड़ेगा। तो ये एक सर्कल है, इसके दरमियान घूमता। तो हम ये कहते हैं कि अगर नौजवान को गर्म मजाज में होना था और वो खड़ा हुआ है ठंडे मजाज में या बलगमी मजाज में, जो बच्चे का मजाज है, तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। बूढ़े को खुश्क मजाज पे होना चाहिए था, वो गर्म मजाज पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ दवाई, कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर बॉडी के अंदर। इसको तो अभी खुश्क मजाज में खड़ा होना चाहिए था। तो इस चीज के बैलेंस को समझने का नाम तिब है। इसको मेंटेन करने का काम जो है वो तबीब के जिम्मे है। उसके लिए वो मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करता है, और वो टूल कुछ भी हो सकता है। आपका एयर हो सकती है, आपका नींद हो सकती है, आपका रहन सहन हो सकता है, आपका खाना पीना हो सकता है, आपकी एक्सरसाइज हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ टूल्स है हमारे, हम इसके जरिए इसको करने की कोशिश करते हैं, आपके मजाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। एक चीज, जी जी। एक चीज आखिरी, और ये सारी चीजें अल्फाज से भी बदल जाती मतलब हैं। ये सारी मतलब ये है कि माँ बच्चे को कहती है बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं,
कुछ नहीं हुआ, पूरी केमिस्ट्री तब्दील हो जाती है। अच्छा। जबकि अब्बा आते हैं, हाँ अब्बा आते हैं, वो कहते हैं कहाँ थे तुम, पूरी केमिस्ट्री बंदे की तब्दील हो जाती है। तो तिब इस लेवल तक की सारी चीजों को डिस्कस करती है, माशाल्लाह। अल्फाज के उतार चढ़ाव और अल्फाज के चुनाव को भी, उसके अल्फाज के असरात तक बॉडी पे मजाज के थ्रू होते हैं। ये मैं अर्ज करना चाह रहा माशाल्लाह। इस ये एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है कि हाउ तिब इज होलिस्टिक, हूँ। यस कि यस। कितनी कितनी चीजों को आप देखते हैं। बेशुमार सवाल उभर रहे हैं, लेकिन अब एडवर्ड का वक्त आ गया है। लेकिन अगर आप किसी के पास सवालात हों तो प्लीज टेक्स्ट कीजिएगा 07503388694 पर। जब वापस आएंगे वी आर गोइंग टू लुक एट हर्बल मेडिसिन इन तिब, हाउ टू नर्चर हेल्थ थ्रू नेचर इटसेल्फ। एंड मैं ये अर्ज करता चलूँ कि ये जिन चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे वो हमारे उर्दू में रसोई कहते हैं, यहाँ किचन मेरे ख्याल में हमारे या किचन में ये चीजें पड़ी होती हैं। यस तो बिल्कुल। हकीम साहब will enlighten us, how to control our health and gain good health and prevent disease and so forth through things that are in our kitchen, inshallah. इंशाल्लाह। Now, if the adverts do not go anywhere, we're going to be back in a jiffy. Khusham, Khusham, welcome back. Of course, we are having as much discussion as we can during the break, and there's so many nuggets that you could potentially miss, so we had to quickly stop because there's lots and lots of information. And one thing that we were just talking about was कि दवाइयाँ वैसे तो अच्छी होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन the key thing is to move away from medicine altogether. एक तो यहाँ जो NHS है उस पे दबाव कम करें, और दूसरा या ये है कि हम अपनी जो सेहत है उसको उसको ऑन करें। मैं ये अंग्रेजी में इस्तेमाल करता हूँ, वी ऑन आवर ओन हेल्थ, के हम खुद अपनी सेहत का भरपूर ख्याल अंदाज से रखें। भरपूर तरीके से उसकी लुक आफ्टर करें। तो सामीन खुश आमदीद एंड वेलकम बैक। दिस इज फीवर एफएम ऑन 107.3। मैं हूं आरजे शहाबुद्दीन। वी आर इन द सेकंड एंड फाइनल हाफ एन आवर ऑफ द तिब शो। तिब की हिकमत, हकीम साहब यही हमने फैसला किया था, तिब की हिकमत या तिब की बातें? जो भी आप रखना चाहें, तिब की बातें भी हो सकती हैं, तिब की अपनी एक विजडम है ना। एक्चुअली हम खाली तिब के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम तिब की विजडम पे बात कर रहे हैं। वो जो विजडम जो आपको थोड़ा सा वॉइस करेगी, जो इंशाल्लाह। सुनने सो वाला हो, इंशाल्लाह। ये तिब की हिकमत भी है, तिब की बातें भी हैं, और या भी कुछ। तो हाजी तौसीफ एंड मम्मी जी सलाम पेश कर रहे हैं दोनों, तो आपका वालेकुम बहुत बहुत सलाम। शुक्रिया। हमारे साथ वालेकुम। महबूब नज़ीर साहब भी हैं, वो हमारे कम्युनिटी के एक लीडर भी हैं, और यहाँ रेडियो भी करते हैं, वो भी सुन रहे हैं। हमारे एक माशा और साथी डॉक्टर मोहम्मद सत्तार साहब यहाँ के माशा डॉक्टर हैं, इनकी अपनी एक माशाअल्लाह। सर्जरी है, लेकिन वो बहुत खुले जहन वाले हैं, बहुत मतलब माशाअल्लाह। इस किस्म का शो वो बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी गौर से सुन रहे हैं माशाल्लाह। और माशा उसके अलावा हमराज भाई ने टेक्स्ट किया है, और उन्होंने बोला कि इनिशियल जो इंट्रोडक्शन था बहुत ही अच्छा था एंड हकीम साहब खुश लग रहे थे, तो उन्होंने ये टेक्स्ट किया। फिर वो सलाम पेश कर रहे हैं हम दोनों को, और अल्लाह पाक ब्लेस यू बोथ विद हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन सुम्मा। वालेकुम अस्सलाम। And वालेकुम। likewise, Hamraz Saab, we've also got 446 saying, माशाल्लाह, very good information, और फिर दोबारा आपने टेक्स्ट किया है कि ये बहुत ही amazing है. So thumbs माशाअल्लाह। up, we're getting a really good response, mashallah. So now we have just 20 or so minutes left, and we're going to move into the herbal medicine. So this is actually what this episode is about, the rich tradition of herbal medicine in Tib. So, inshallah, we're going to try to uncover the profound role that herbal remedies play in promoting health and restoring balance. ये अल्फाज गहरे हैं, सिंपल भी हैं, और आपको अपने दिमाग में इनको सेट कर देना है कि जो हर्बल रेमेडीज हैं वो हेल्थ को प्रमोट सिर्फ नहीं करते, लेकिन एक बैलेंस को रिस्टोर करते हैं। जब हम हमारी सेहत चली जाती है, वो जैसे हकीम साहब ने पिछले हफ्ते फरमाया था कि बदन में वो बैलेंस चला जाता है। So Tib helps us bring the balance back, and how we can do that through herbal medicine. So Unani healing is a deep-rooted connection with nature, and herbal medicine stands as a cornerstone of this ancient tradition. Herbs are regarded not just as remedies,
but as allies in the journey towards holistic well-being. And each herb is seen as possessing unique properties that can address a specific imbalance within the body. और herbal का दूसरा नाम है जड़ी बूटी. जड़ी जड़ी बूटी. बूटी, हाँ, आसान करने के लिए जड़ी बूटी. आसान करेंगे ये जड़ी बूटियां. तो हकीम साहब आप फरमाइए, हर्बल और जड़ी बूटी के हवाले से आप क्या हमें एजुकेट करना चाहते हैं? जी, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने जैसे अभी पिछले सेगमेंट में ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में ये कहूंगा कि मैंने जैसे भी आपको अर्ज की कि एक तबीब बहुत सारी चीजों को एज ए टूल यूज करता है किसी जंग के लिए. जो जंग है मर्ज के खिलाफ, वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो नश्तर उठा ले जिसको आप कहते हैं कांटे वांटे छुरियां उड़ियां जैसे ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो सर्जरी के लिए टूल्स उठा ले. जब तबीब को लगे वो टूल्स यूज करता है. जब उसको लगे कि तेज तरीन दवाइयां देनी है जो जहरीली होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, जब तो उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स. ठीक है ना, तो मतलब है जिंदगी के खिलाफ ले जाने वाली दवा. लेकिन दरअसल वो जरासीम की जिंदगी के मुखालिफ है, और वो आपको जिंदगी दे. चाहे तो तबीब वो लाइन अख्तियार कर ले, चाहे तो आपकी गजा जिससे दवा प्रोड्यूस हो रही थी, जिससे वो मर्ज मर्ज पैदा हो रहा था, तो चाहे वो उसको ही बंद करके जिससे वो जरासीम या बीमारी फल फूल रही थी उसको रोक ले, चाहे तो अद्वियात का इस्तेमाल करे. जो प्रॉपर टूल्स हैं हमारी किसी भी टिप का होता है, किसी भी तरीका इलाज में जो दवा है जिसको ड्रग्स कहते हैं, उसको जब हम यूज करने की तरफ जाते हैं तो उसमें बहुत सारी किस्म की ड्रग्स हैं. ड्रग्स की एक तारीफ ये की जाती है, मेडिसिन कहा जाता है वैसे उसको, लेकिन सही नाम ड्रग ही है. कहते हैं मेडिसिन में भी पॉइजन, पॉइजन में भी मेडिसिन. ये सिंपल तारीफ है कि जो चीज भी दवा की कैटेगरी में आएगी तो उसका मतलब ये है कि वो गजा नहीं होगी. ठीक है, जो भी गजा होगी वो, ये मुमकिन है कि कोई भी गजा दवा की तरह असर करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी दवा गजा की तरह असर कर सके. और दवा की मिकदार को जैसे ही अब उस रेंज से, अपनी उस लिमिट से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वो जहरीले असरात पैदा करेगी और वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, होती है. ठीक है, तो टिप के अंदर रहते हुए अब मुझे अपनी अगर कोई ड्रग इस्तेमाल करनी है तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास चलते फॉर्मुलेशंस. हमारे ये नहीं, ऐसे नहीं है कि बस मैंने तय कर लिया कि मैंने कलवंजी से ही ठीक करना है किसी को, या जैसे आजकल पीक में जरा सीजन चलते हैं हर चीज के, तिब्बे नब्बी का भी सीजन चला था, सब तुले हुए थे इस बात पे कलवंजी खा के ठीक होना है. सब लोग तुले हुए थे शहद खा के ठीक होना या खजूर खा के ठीक होना, बिल्कुल शिफा होती है इससे, लेकिन वो किस स्टेज पे होती है उसको समझ के चलना है. कुछ ये चीजें जो है बीमार होने से पहले इस्तेमाल करनी है आपने, आपको बीमार नहीं होने देती. शहद के बारे में जैसे है, लेकिन आपका बुखार है, आपका पेट खराब है, आपकी आंखें दुख रही हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है शहद इस्तेमाल ना किया जाए. ठीक है, तो इसका मतलब ये इन बातों को मद्देनजर रख के चलना है. अमूमन लोग कलवंजी के फवायद के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कलवंजी के नुकसान क्या हैं, साइड इफेक्ट, उसके बारे में कौन बात करेगा. तो उस जहनियत के साथ मैंने जो ये टॉपिक रखा था कि जब हम मजाज की तरफ बढ़ते हैं, मजाज में थोड़ा सा बैलेंस आउट हो चुका है, उसकी वजह से मर्जी कैफियत सामने आ रही हैं, तो हम उसको जब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या बहुत सारे टूल यूज करूंगा, तो जब मैं मेडिसिन की तरफ जाऊंगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कंपाउंड इस्तेमाल करूं. फर्ज करें उसके अंदर कलवंजी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कलवंजी जो है खून को पतला करती है. हाँ? मुझे लगता है कि अच्छा मुझे कलवंजी को इस्तेमाल करवाना है, और ब्लैक सीड इसको कहते हैं, आम मिलते हैं, बल्कि मेडिटेरियन की तरफ ज्यादा उगते हैं, कुछ एशिया में भी है लेकिन ज्यादा वहीं पर है. तो वो सीड अगर आपको इस्तेमाल करने चले हैं और वो इस्तेमाल करते हुए आपको कोई साइड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट ना आए, तो क्या होगा, उसके अंदर में कुछ चीजों को पहले से ऐड करूंगा एज ए तबीब, उसको बैलेंस करने के लिए कि वो दवा आपके लिए लेस हार्मफुल हो. ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट है हमारे पास, वो इतनी बड़ी है कि आप उसके झगड़े में पड़े बगैर. तो मैंने इसका तरीकाकार सोचा कि मैं, अगर आप सादा अल्फाज में आपको 4 किस्म के मजाज मैंने जैसे बताया आपको, और सादे अल्फाज में समझाएंगे कि मजाज जो है वो 4 किस्म के हैं.
बीमारियों की कैटेगरी को हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, एक को हम कह देते हैं सबसे ऊपर दिमाग, और उसको हम कहते हैं बलगम या तरी की बीमारियां, तरी से पैदा होने वाली बीमारी। भाई ज्यादा देसी घी खा लिया, तरी पैदा हो जाएगी ना, तो उससे भी तो बीमारी होती है। मक्खन ज्यादा खाएं, तरी हो गई। दूध ज्यादा पियेंगे, तरी हो गई। पानी ज्यादा पिया, तरी हो गई। उसकी भी तो बीमारियां हैं। तो हम तरी से इस्तेमाल शुरू करते हैं, नीचे आएंगे और राइट पे मुड़ जाएंगे, हम कहेंगे खुश्की से पैदा होने वाली बीमारियां। ठीक है, जैसे तरी की मिसाल है ऐसे खुश्की की मिसाल है। खुश्क गजाओं के अंदर की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो गोश्त खुद बेहतरीन मिसाल है खुश्की की, लेकिन और बहुत सारी मिसालें हैं उसमें, किन्नू माल्टा टाइप की गजाएं भी आते हैं, सिट्रिक वाली सारी चीजें आती हैं। ये सारी चीजें एट दी एंड क्या खुश्की पैदा करती हैं। जब जैसे मैंने पिछली मर्तबा पिछली निशिस में ये अर्ज की थी, आयरन की बुनियादी चीजें जो होती हैं, ज्यादा मिनरल बेस्ड जो गजाएं होती हैं, तो वो आपके अंदर खुश्की पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, आपके अंदर खुश्की पैदा हो जाएगी। ठीक है, तीसरी किस्म जो है वो है गर्मी की बीमारियां, गर्मी पैदा करने वाली बीमारियां, जैसे चिकन, अंडा, मछली टाइप की गजाएं और खुद मिर्चें। ये आपके अंदर क्या करती है, थर्मोजेनिक होती हैं। आप कोई चीज उसका, आप उसकी हर चीज गर्म होगी। मतलब मिर्च मुंह में रखते ही क्या होगा, मुंह जुबान आपकी सुर्ख हो जाएगी, गर्मी का एहसास होगा, अंदर जाएगी तो बर्निंग शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब वेरी सिंपल है। तो ये गर्मी से पैदा होने वाले मसाइल आ गए। तो हकीम साहब, आइए फिर बात को आगे बढ़ाएं, और फिर जो हमारे रसोइयों में या किचन में कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सवाल मैं अभी बता दूं कि वैसे लोगों को तो ये नहीं पता ना कि अगर मैं वेट और ड्राई हूँ या हॉट और वेट हूँ, तो हम्म। ये जो किस लेवल तक हमें जड़ी बूटी का इस्तेमाल जो हम वैसे घर पे उस मतलब वो ऐसे हो सकता है कि कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बदन को सुनना पड़ता है कि बदन उसको टॉलरेट कर रहा है कि नहीं। तो इस यस पे भी यस, मैं थोड़ी सी इसको मजीद आसान, बात करें। बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। मैंने अभी अर्ज की थी तरी, खुश्की, गर्मी और सर्दी, ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है। तो अभी हम कंपाउंड की तरफ नहीं जाते, वो बाद में जाएंगे। वेरी सिंपल, तरी की कुछ अलामतें होंगी, रनिंग नोज होगी, जिसम ठंडा होगा, चिपचिपा होगा, है ना, यूरिन ज्यादा होगा, अगर मोशंस हो रहे हैं तो पतले मोशंस होंगे। अब उसका इलाज है खुश्की जिसम में पैदा करना। और खुश्की अगर आपके जिसम में पैदा होगी तो तरी की अलामतें कम हो जाएंगी। अब अगर आपके अंदर खुश्की बढ़ गई है तो उसकी अलामतें क्या होंगी, यही चीजें सब ड्राई हो जाएंगी। आपकी नाक ड्राई हो जाएगी, वही यूरिन जो आपको ज्यादा आ रहा था बहुत कम आएगा, कलर भी उसका सुर्खी माइल टाइप का, येलोइश टाइप का, जामनी टाइप का होने लग जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि आपको आपको कब्ज हो जाएगी। ठीक है, अब हम उसके इलाज के लिए बताएंगे कि जी आपको क्या करना है। अगर हम आपको कोई इलाज के तौर पे कुछ चीज बताते हैं, अब आप इलाज उसका है गर्मी पैदा करना। जैसे ही आप गर्मी पैदा करने की दवाइयां लेते हैं, जब वो ठीक हो गया तो उसको राइट टाइम पे उन दवाइयों को बंद करना है या उन किचन रेमेडीज को बंद करना है। क्योंकि अगर गर्मी खुश्की को तो खत्म कर देगी, आपकी कब्ज ठीक कर देगी, आपकी जो आपका नाक खुश्क था उसको भी ठीक कर देगी, पेट आपका जो गड़बड़ था वो भी ठीक कर देगी। लेकिन अगर वो बढ़ गई तो आपके अंदर क्या होगा, यही मसाइल फिर शुरू हो जाएंगे। उसमें बर्निंग शुरू हो जाएगी, नाक के अंदर मवाद गाढ़ा हो जाएगा। वो जो पहले पतला बह रहा था उसके बाद ड्राई हो गया था, अब वो फिर बहना शुरू हो जाएगा, लेकिन गाढ़ा होगा, तकलीफ दे होगा। ऐसे ही पेट से जो सयाल, जो मोशन आपको होगा वो पेचिस की शक्ल में, डेसिलिटी की शक्ल में होगा, क्रैम्प्स पड़ेंगे, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपके अंदर कोल्ड शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हर चीज स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, तो तरी इसका इलाज है खुश्की, खुश्की का इलाज है गर्मी, गर्मी का इलाज है सर्दी, सर्दी का इलाज है फिर तरी। ये एक साइकिल है, ये ध्यान में रखें। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि तरी की सबसे बेहतरीन मिसाल जो किचन में पाई जाती है, जो आपकी बॉडी में तरी पैदा कर सकती है फौरी तौर पे, वैसे दवाइयों पे जाना है नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी किचन के अंदर आपके पास सौंफ पड़ा हुआ है, आपके पास सफेद जीरा पड़ा हुआ है, आपके पास कुछ नहीं है तो चीनी पड़ी हुई है ना, अच्छा, इलायची पड़ी हुई है, ये सब तरी पैदा करने वाली चीजें हैं। छोटी इलायची, काली इलायची, ये सब तरी पैदा करेंगी। आप इनमें से कुछ भी लेंगे, पानी में डालें, बॉयल करें, ले लें। अगर आपके अंदर सर्दी की अलामतें थी और उसमें तरी नहीं थी, तो आपको ये तरी पैदा करके आपके अंदर गर्मी को भी कम कर देंगी। आपके अंदर आपको लगेगा उस कैफियत से आप बाहर निकल गए। ठीक है, अच्छा, अब तरी की वो चीजें आपके पास मौजूद थी, क्या क्या हो मैंने बता दी। सौंफ पड़ी होती है, अमूमन किचन में मौजूद होती है।
सफेद जीरा पड़ा हुआ, जीरा, इलायची पड़ी हुई है, चीनी पड़ी हुई है, इलायची। मीठी कोई भी चीज, ठीक है, इजी है। अच्छा, केला पड़ा हुआ है फ्रूट्स में, दूध पड़ा हुआ है आपके पास, तो इसका मतलब इलायची अगर हम दूध में डालेंगे तो और तेज हो जाएगी, उसमें चीनी ऐड करेंगे तो और तेज हो जाएगी। अब उसको हमने गर्म इस्तेमाल नहीं करना, ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो और बढ़ जाएगी उसकी, ऐसे इसका दर्जा बढ़ता जाएगा। अब मतलब हम उसकी हमने आइसक्रीम बना के खा ली तो ये तरी पैदा करने वाली शानदार चीज बन गई, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए खुश्की की तरफ। अभी तरी बढ़ के उसने रनिंग नोज और ये वो सब अलामतें शुरू हो गई, और गला खराब और बुखार शुरू हो गया, कोल्ड जिसको कहते हैं, उसकी अलामतें शुरू हो गई, तो आपको उसके अंदर पहले खुश्की पैदा करनी है। खुश्की पैदा करने की बेहतरीन मिसाल आपके अंदर सिट्रिक है, किन्नू, माल्टा, लेमन, लेमन जूस है ना, आंवला है, अनार है, खुश्क अनार के दाने पड़े हुए हैं घर में जिसको अनार दाना कहते हैं, आंवला पड़ा हुआ है, बेताजा चीजें किचन में कचरी की सूरत में, टाटी की शक्ल में ये पड़ी हुई है, लस्सी की शक्ल में, दही की शक्ल में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, विनेगर की शक्ल में पड़ा हुआ है। ये सब आपके अंदर खुश्की पैदा करने वाले बेहतरीन सोर्स है। अच्छा, खुश्की के अंदर खुश्की के भी दो दर्जे हैं, खुश्की के अंदर खुश्की गर्मी एक अलग चीज है, गर्मी खुश्की एक अलग चीज है, वो हम नेक्स्ट टाइम पे हम रखते हैं इसको। तो खुश्की जब बढ़ गई है तो हम गर्मी की तरफ जाते हैं, कि आपको गर्मी, खुश्की की अलामतों को दूर करने के लिए ये ध्यान में रखें, ये मैंने छोटी अलामतों की बात कर रहा हूँ, बड़ी बीमारियों का नाम नहीं ले रहा। खुश्की की बड़ी तरीन अलामत में कैंसर आते हैं, ठीक है, हेमोराइड्स आते हैं, ठीक है, वो टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं, आपने उसको डील नहीं करना है, वो आपको एक नॉलेज में डील करना है। उसके लिए दवाएं ये नहीं चलेंगी, लौंग दालचीनी के कावे नहीं चलेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या चलेगा, तेज किस्म की दवाएं, जो नॉलेज को पता, जो ड्रग्स हैं, जो हार्मफुल भी हो सकती हैं, तो उसको पढ़ा हुआ होता है, वो उसका माहिर होता है, तो वो उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद आपको इस्तेमाल करवाएगा। तो इसलिए हम बड़ी बीमारी को डिस्कस नहीं कर रहे, एज ए नॉलेज नहीं शेयर कर रहे, एज ए कुछ केस डिस्कस करना होगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे खुद डिस्कस करूंगा। तो गर्मी के लिए आपको क्या करना है, घर के अंदर क्या पड़ा हुआ है आपके अंदर, काली मिर्च पड़ी हुई है, अदरक का पाउडर पड़ा हुआ है, अजवाइन पड़ी हुई है, नमक पड़ा हुआ है, ठीक है। तरी के लिए क्या था, मीठा, खुश्की के लिए खट्टा, गर्मी के लिए नमक, ठीक है। ये चीजें जो पड़ी हुई हैं आप इसको इस्तेमाल करते हैं, फौरी तौर पे कुछ ना कुछ रिजल्ट ले लेते हैं। फिर आप आ जाए कोल्ड, वो चीज जो सर्दी पैदा करेगी, खुद खुश्क ज्यादा होती है लेकिन वो सर्दी पैदा करेगी, बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। इसबगोल लोग समझते हैं तारा है, लेकिन बाय प्रोडक्ट उसका एट द एंड क्या बनेगा, खुश्क, अपना सर्दी पैदा करेगा, बर्फ। और ये इसका जायका हमेशा फीका होगा, फीके खाने जो लोग खाते हैं उनके अंदर आखिर में क्या होता है, सर्दी बढ़ जाती है, ठीक है। साबूदाना इसकी मिसाल है, मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स इसमें आते हैं, जैसे खुश्की, सर्दी लिए हुए लस्सी, ठीक है। तो ये चीजें आपको फौरी तौर पे एज ए दवा इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। अगर हम ये कहें आपके पास दूध पड़ा हुआ है, दूध के अंदर मैं इलायची डालूंगा तो एक दवा बन गई। अच्छा, अब आपका बीपी भी हाई है, गर्मी की लामत है, मैं उसमें जीरा इजाफा करवा दूंगा, मैं उसके अंदर धनिया का इजाफा करवा दूंगा। हम खाली आपको इस एपिसोड में ये बताना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से इसको हम डील कर सकेंगे या करते हैं घर बैठे हुए इंशाल्लाह। आप घर बैठे हुए अगर मेरी ये बात को गौर से सुन लिया आपने, जो कि हम अगले आगे जब बयान करेंगे आपको साथ साथ समझाते जाएंगे। हम आपको, मैंने अर्ज की कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद कतई ये नहीं होगा कि मैं आपको एक दवा से निकालूं, आप जो आपकी जो कन्वेंशनल कुछ मेडिसिन आपकी चल रही हैं, आपकी जो ऑलरेडी ले रहे हैं, आपको मैं उससे हटा के नई अदाब में डाल दूं, नई मेडिसिन में डाल दूं, ठीक है। हम ये कहेंगे कि आप उन दवाइयों पर रहते हुए इन चीजों को सपोर्ट लें। मसलन एक कैंसर का मरीज है, मैंने पहले भी अर्ज की थी, वो कहता है कि जी मेरे पेट, मुझे कब्ज हो गई है, यहाँ पे मैंने आपको खुश्की बयान कर दी। खुश्की को तोड़ने के लिए क्या चीज बताई थी मैंने, कि भाई आप अदरक का पाउडर ले इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अजवाइन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पुदीना इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर नमक थोड़ा सा डाल के इस्तेमाल करेंगे, जबरदस्त चीज बन जाएगी। उसको गोश्त में डाल के खा सकते हैं, चिकन में डालेंगे, जबरदस्त आपको फायदा करेगा। उसके अंदर आप अंडे में भी डाल के खा सकते हैं। अब आप कब से भी बाहर निकालें, क्योंकि वो कैंसर का मरीज है, तो ये डाइट मैनेजमेंट इस तरीके से होती है। लेकिन अगर वो एक मरीज आ गया, वो कहता है कि जी मुझे थोड़ा सा गिनोरिया का प्रॉब्लम हो गया, अगर वो गिनोरिया का प्रॉब्लम हो गया, गिनोरिया के अंदर फिर पिछली दवा नहीं चलेगी, हम अगली दवा देंगे, कोल्ड
एंड मॉइस्ट देंगे। हम कहेंगे कि आप दूध ना इस्तेमाल करें, आप पानी के अंदर सफेद जीरा, सौंफ, उस टाइप की चीजें इस्तेमाल करें। जो उस टाइम पे सामने आएंगी उसको हम इस तरीके से डील करते हैं और करेंगे। बस मैं इस बात पे इसको एंड करूंगा, फोकस होकर अगर आपने इस प्रोग्राम को सुना, इंशाल्लाह छोटे छोटे मसाइल के लिए जिसमें आपको इमरजेंसी के तौर पे डॉक्टर्स की तरफ भागना पड़ता है या 2-2 साल इंतजार करना पड़ता है, आप उन बीमारियों की तरफ डॉक्टर तक पहुंचने तक इंशाल्लाह आप सेहतयाब हो सकते हैं। घर बैठे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलो, और इंशाल्लाह, और ये बिल्कुल सही है कि हमारे किचन्स में, रसोइयों में काफी ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, do you know what, this is what happens, it happened last week as well. There's so much to discuss, बेशुमार सवाल आ रहे हैं, and I just don't have the time to ask these questions. There were many questions I wanted to ask, लेकिन हकीम साहब वक्त का बल्कि खत्म हो गया ऑलरेडी। सो बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इंशाल्लाह ताला इसको अगले हफ्ते जारी रखेंगे। जो अगले हफ्ते का टॉपिक होगा, दैट इज माइंड बॉडी कनेक्शन इन यूनानी मेडिसिन। तो हम रूहानियत को देखेंगे, मुराकबा को, दम, ख्वाब, जिक्र, दुआ वगैरह। सो दिस इज एक और पहलू। आज हर्बल्स पे था और अगले हफ्ते बिल्कुल एक अलग किस्म का व्हिच व्हिच टॉक्स अबाउट अनदर डायमेंशन ऑफ थिंग्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, और we'll see and speak to you next week इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कदीम और जदीद तिब्बी उलूम और अशरों पर मोहित जनाब मुदस्सिर फहीम की जाती रिसर्च पर मबनी ये चैनल, जिसमें मिले आपको आपके तमाम जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी मसाइल का हल और आपके तमाम सवालात के मुमकिना जवाबात। तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।